Hello everyone. Today we are doing exercise 6.1 in this module, and in previous module we have done the definitions. Now that definitions will help here in solving the sums. The linear pair definition, vertically opposite angles definition, that will help here in solving the sum. Now question number 1 is, in figure 6.13, lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. Now we are starting with given. What is given to us? Angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree. Before that, it is given that these two lines, this AB and here this CD, are the intersecting lines. Now when these two lines intersect each other, they form vertically opposite angle. Means here this angle is 40 degree और इसका vertically opposite angle कौन सा होगा? AOC. तो BOD equals to AOC. ये आपका हो गया vertically opposite angle. Now remember what we have learned in the definition. When two lines intersect each other at a point, then vertically opposite angles are formed, and vertically opposite angles are equal in measure. ये these are vertically opposite angle. अगर इसका मेज़र 30 डिग्री है तो इसका मेज़र भी आपका 30 डिग्री होगा. सेम हेयर, इफ़ एंगल बी ओ डी, दिस वन इज़ 40 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी विल ऑल्सो बी 40 डिग्री. दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो वी विल राइट इन द सॉल्यूशन एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी equals to 40 degree. Vertically BOAs means vertically opposite angles. Now the next thing we have angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree. Now अब हमारे पास ये जो AOC है ये कितना आ गया? 40 degree. Now AOC plus BOE equals to 70 degree it is given. तो अब आपका यहाँ पे you can put the value of this AOC. यहाँ पे आप अगर AOC की वैल्यू क्या रखनी है हमको? 40 डिग्री. तो 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री. तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ बी ओ ई? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री. हियर वी हैव सॉल्व दिस वन. एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री, 40 डिग्री प्लस बी ओ ई 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ ई 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री equals to 30 degree. Now next, again see in the figure. Here these three angles, angle AOC plus angle COE plus angle BOE, these three angles, these form 180 degree because they lie on the same line AB. तो ये तीनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं. So you will write here angle AOC plus COE plus BOE, angle AOC plus COE plus BOE. The same thing it is written here, angle on the same line, and you can write here angles on the straight line. Now put the value. एंगल AOC प्लस BOE, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इसकी वैल्यू हमको गिवन थी क्वेश्चन में 70 डिग्री. तो यहाँ हमने AOC प्लस COE की वैल्यू रख दी यहाँ पे AOC प्लस BOE की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 70 डिग्री. AOC प्लस BOE और बचा क्या हमारे पास में? दिस वन COE इक्वल्स टू 180. तो COE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 70, दैट इज़ 110 डिग्री. तो दिस वन COE equals to 110 degree. Now reflex COE we have to find out. क्वेश्चन में रिफ्लेक्स COE फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. तो रिफ्लेक्स COE मतलब टोटल कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री का होता है. तो 360 माइनस एंगल COE करेंगे, 360 माइनस 110, तो आपका रिफ्लेक्स 250 आ जाएगा. अगर कहीं पर भी रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होता है तो 360 में से उसी एंगल को माइनस करना है. लाइक COE फाइंड करना है तो 360 माइनस एंगल COE. देन अगर आपको रिफ्लेक्स AOC फाइंड करना होता तो 360 माइनस एंगल AOC. तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए 360 में से माइनस करना होता है.
Now this was your question number 1. Question number 2. In figure 6.14, lines XY and MN intersect at O. If angle POY equals to 90 degree and A is to B equals to 2 is to 3, find C. Now here it is the figure. Now here these two lines XY and MN, these two lines, this one is XY and this one is MN, these are intersecting lines. ठीक है. Now here angle A is given here, angle B is given here, and the ratio of angle A and B is 3:2. तो जब भी रेशियो गिवन होता है तो क्या करना है, एंगल ए को यू कैन टेक 3x एंड एंगल बी यू कैन टेक 2x. अब यहाँ पे एंगल वाई सी पी या यू कैन से पी सी वाई, दिस वन इज़ 90 डिग्री, दिस एंगल इज़ योर 90 डिग्री. अब अगर हम इन तीनों एंगल्स को देखते हैं, नाउ व्हाट यू कैन सी हियर, दीज थ्री एंगल फॉर्म 180 डिग्री बिकॉज दे लाई ऑन द सेम लाइन. तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन या लाई ऑन द सेम लाइन. अब A की वैल्यू वी हैव 3x, क्योंकि आपका यहाँ पे A इज़ टू B गिवन है 3:2. तो A को हम लेंगे 3x एंड B को हम लेंगे 2x. तो A की वैल्यू है 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. As you can see here in the solution, first to given you have to write angle POY equals to 90 degree, then A is to B equals to 2:3 it is given, and we have to find angle C. Now solution, let A equals to 2x and B equals to 3x. Now here A plus B plus 90 degree equals to 180 degree, angles on the same line. देन नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ पे A एंड B की वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ A एंड B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3:2 मीन्स 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 5x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री. इस 90 को आप इधर ले आओगे राइट हैंड साइड में, तो 5x इक्वल्स टू 90 आ जाएगा. देन x की वैल्यू 90/5 करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ गई 18 डिग्री. ना अब जो x की वैल्यू आई है उसको आप A एंड B में पुट कर दो. A हमारा क्या था 2x एंड B हमारा क्या था 3x. तो 2 इंटू 18 36 डिग्री एंड 3 इंटू 18 54 डिग्री. ठीक है. नाउ A एंड B की वैल्यू आ गई आपके पास, A की वैल्यू आ गई आपके पास में 36 डिग्री एंड B की वैल्यू आ गई आपके पास में 54 डिग्री. अब वी हैव टू फाइंड एंगल C. आपको चाहिए A और B की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, फाइंड करनी है एंगल C की वैल्यू. तो एंगल C कैसे आएगा, नाउ एज यू कैन सी दिस B एंड C फॉर्म 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स. ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो टू एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं. ये स्ट्रेट लाइन पे अगर टू एंगल्स होते हैं तो दे फॉर्म लीनियर पेयर. तो ये आपका B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स. B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन C की वैल्यू आ गई 180 माइनस B की वैल्यू हमारे पास कितने आई थी ऊपर 54. तो 180 माइनस 54 इज़ 126 डिग्री. तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर 6.15, दिस इज़ योर फिगर. इन दिस फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ. PQR equals to PRQ. This angle Q, interior angle, and angle R, interior angle. Then prove that angle PQS equals to angle PRT. Now look in the figure. This Q and this R, it is given equal. और आपको फाइंड करना है कि ये वाला एंगल PQS and PRT, these are equal. एक चीज़ गिवन है और एक चीज़ आपको फाइंड करनी है. नाउ सी हाउ यू विल सॉल्व दिस. फर्स्ट यू विल राइट गिवन, व्हाट इज़ गिवन हियर, PQR इक्वल्स टू PRQ, दीज टू एंगल्स, एंड
पी क्यू एस इक्वल्स टू पी एंगल पी आर टी यू हैव टू प्रूव कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल प्रूव करना है. नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी इन द फिगर कि ये आपका जो ये दोनों एंगल मिलके दिस वन इंटीरियर एंगल क्यू ये वाला और ये एक्सटीरियर एंगल क्यू मीन्स आपका विच एंगल पी क्यू आर और पी क्यू एस ये दोनों मिलके आपका 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है. सेम हियर दिस वन ये इंटीरियर वाला आर और ये एक्सटीरियर वाला आर मीन्स एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर टी. ये आपका पी आर टी यहाँ पे आपका कहीं पे पी है तो ये आपका पी आर टी एंड पी आर क्यू ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर. तो वी हैव रिटन हियर एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर. विच वन पी क्यू एस? दिस वन पी क्यू एस. ये बाहर वाला एंगल और ये अंदर वाला एंगल पी क्यू आर ये मिलके 180 डिग्री बना रहे लीनियर पेयर एंगल. देन एंगल पी आर टी पी आर क्यू एंड एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये भी लीनियर पेयर बना रहा है. नाउ अब फ्रॉम 1 and 2 अब आपका क्या हो गया यहाँ पे कि ये आपका राइट हैंड साइड आपके इक्वल हो गए 180 180 तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे. तो व्हाट यू हैव टू डू पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर टी प्लस पी क्यू आर. अब यहाँ पे क्या होगा आपका पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी. तो यही आपको प्रूव करना था. नाउ हेयर अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू by putting the angles. Here you can put angle 1 and angle 2 this one and here you can put angle 3 and outside angle 4. Now see how you will solve this. Angle 1 plus angle 2 equals to 180 degree you can write. Linear pair, they form linear pair. And angle 3 plus angle 4 equals to 180 degree you can write these two angles. ना अब यहाँ पे आपको गिवन में क्या है पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू मीन्स पी क्यू आर कौन सा एंगल है 1 एंगल एंड पी आर क्यू कौन सा है 3 मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 आपको गिवन है. नाउ अब यहाँ पे ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ना इक्वेशन नंबर 2 में आप 3 की जगह क्या पुट कर सकते हो 1 पुट कर सकते हो क्योंकि 1 इक्वल्स टू 3 है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा जब आप 3 की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा. अब आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को देखना है. तो ये जब आप 180 डिग्री राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4. देन एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 बचेगा जो कि हमारा ये एंगल है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 मीन्स एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी. तो या तो एंगल पुट करके यू कैन सॉल्व दिस सम और अदरवाइज आई हैव डन हियर विद द नेमिंग. first equation is angle PQS this one and PQR this one ये 180 फॉर्म कर रहे हैं. देन PRQ एंड PRT ये दोनों मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसमें सेकंड वाली लाइन में इन दिस लाइन PRQ की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है PQR क्योंकि PRQ इक्वल्स टू PQR गिवन है हमको क्वेश्चन में. तो ये हमने PRQ की जगह PQR पुट कर दिया तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब आपका राइट हैंड साइड इक्वल है ये 180 और ये 180 तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा. तो PQS लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है PQS प्लस PQR तो PQS प्लस PQR और यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में PRT प्लस PQR तो यू विल राइट हियर इक्वल्स टू PRT प्लस PQR. अब PQR से PQR कैंसिल हो जाएगा तो you will remain with PQS equals to PRT. This you have to prove. The hence prove. So these are the 3 questions of this exercise. Now
In the next module we will do the remaining sums. So do these sums in your copy. Thank you.